ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو میرا سلام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم مختلف موضوعات پر بین الاقوامی، ریاستی اور قومی سطح پر مباحثے کرتے ہی رہتے ہیں۔ یہاں انتخابات کی آمد ہے، ہم نے سوچا چلیے انتخابات کے حوالے سے ہم بھی کچھ پروگرام کریں اور کینڈیڈیٹس جو ہمارے امیدوار ہیں ان کو بھی آپ کے سامنے لائے، انہیں روبرو کرائے۔ آج ہمارے ساتھ دو کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے DDC الیکشن کے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہردل عزیز نذیر احمد خان صاحب ہیں، حلقہ انتخاب بیروا سے آپ نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں، اور ہمارے ساتھ سید پرویز ہلال صاحب ہیں، آپ نے حلقہ انتخاب ناربل سے اپنے کاغذات نامزدگی سبمٹ کیے ہیں۔ ہمارے ساتھ ضلع بارہمولہ سے اشرف صاحب جڑے ہوئے ہیں، آپ تجزیہ نگار ہیں، ہمارے پروگرامز میں آتے ہی رہتے ہیں۔ آپ تینوں کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے میں محترم نذیر احمد خان صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ نذیر صاحب، آپ کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے، اور میں آپ سے سر پوچھنا چاہتا ہوں، میرا پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جو ہمارا پبلک ہے، ہماری عوام ہے، انہیں ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ DDC الیکشنز ہوتے کیا ہے۔ اگر آپ اختصاراً اس حوالے سے فرمائیں کہ یہ DDC الیکشنز ہوتے کیا ہے تو کرم ہوگا۔ جی نذیر صاحب۔ جہاں تک DDC الیکشن کا تعلق ہے، اس کا نام ہے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسل، بنیاد ترقی مستحق لوگوں کو کی طرف سے امداد پہنچنے کا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سمپلی پنچایت الیکشن کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے۔ اس میں نے فرق سمجھا کہ لوگوں تک روٹی کپڑا اور مکان پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے، تو ہم اس سے کچھ ہے نہیں۔ جہاں تک گائیڈ لائن نارمل کا تعلق ہے، بریڈ بٹر اینڈ شیلٹر، روٹی کپڑا کے الگ نہیں، وہ کافی پیپل کے مطابق نہایت ضروری ہے یہ DDC الیکشن۔ جی آپ نے روٹی کب سیاسی اعتبار سے مشکلات کا کافی سامنا ہے، یہاں کی سیاسی حالات بہت کروٹ آئی، لوگ پریشان ہیں، شام کو کچھ دیکھتے ہیں، صبح کو کچھ دیکھتے ہیں، حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ آج کا کشمیر میں رہنے والا انسان کچھ اخذ ہی نہیں کر پا رہا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ اس لیے یہ جو DDC الیکشن جو ہے، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ سمپلی کم سے کم ہمارے نفس کا گزارا جو ہو، جس میں روٹی کپڑا اور دوسرے لوگوں تک پہنچنے کا اس میں سے جو موقع فراہم کیا جا رہا ہے، یہ اس میں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جی بڑی بہترین بات آپ نے فرمائی سر۔ آپ نے روٹی کپڑا اور جو مکان ہیں، جو بنیادی ضروریات ہے عوام کے، ہمارے غریب عوام کی، اس حوالے سے آپ نے بات کی۔ یہاں تو روٹی کپڑا اور مکان کے لیے ہمارے بڑے بڑے پرائم منسٹر ناکام ہوئے، تو آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے، کیا پالیسیز ہیں جو خاص سے دیگر کینڈیڈیٹ سے؟ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے آج جو لوگ DDC کے لیے چن کے آئیں گے، یہ عوامی رائے سے آئیں گے۔ مجھے بہت بڑا دکھ ہے کہ پالیٹکس میں ایک بڑا آنریبل کرپشن ہوا کرتا تھا، کاؤنسل MLC جو دوسرا پارٹ تھا ہمارا، ایک تھا لیجسلیٹو اسمبلی اور دوسرا لیجسلیٹو کاؤنسل۔ لیجسلیٹو کاؤنسل کے ذریعے ہمارا جو لوگ الیکٹ کر رہے تھے، لوگوں کو جو ریئل ریپرزینٹیٹو تھے، ان کا حق مارا جا رہا تھا کاؤنسل کے ذریعے سے، اور وہ چیز ختم۔ اس سے مجھے پورا یقین ہے کہ آج کے ڈیٹ میں جو لوگوں کو چنیں وہ عوامی رائے سے، عوامی اعتماد سے بنیں گے، اور وہ ترجمان کریں گے، اور وہ ترجمان ہوں گے، اور ان کے ذریعے سے مستحقین تک حق ضرور پہنچے گا، مجھے امید ہے۔ جی نذیر صاحب، میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا۔ ہمارے ساتھ سید پرویز ہلال صاحب موجود ہے۔ پرویز ہلال صاحب، آپ بھی جانے مانے چہرے ہیں بیروا کے،
जो कॉन्स्टिट्यूंसी ब्यूरो है इसके जाने माने चेहरे, आपने भी कई इलेक्शंस में हिस्सा लिया है, आपका क्या मैनिफेस्टो है इस इलेक्शन के हवाले से, क्या आपका मंशूर है इस इलेक्शन के हवाले से? देखिए, जब तक सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने हमें इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका दिया। नजीर साहब तो मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनके वालिद मरहूम और मेरे वालिद मरहूम भी हमारी की तरफ ही बहुत अच्छे दोस्त थे। नजीर साहब ने तो आपको बता दिया सियासत के बारे में। जहाँ तक हमारे मंशूर का ताल्लुक है, कांग्रेस के मंशूर की बात मैं कहूँगा, हमारा तो मंशूर ही है कांग्रेस का हाथ मजलूम के साथ, ये कांग्रेस का मंशूर है। और हम चाहते हैं कि जैसे अभी नजीर साहब ने अभी कह दिया आपको कि हम चाहते हैं कि जो हमारे प्रोग्राम से, जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम से आम लोगों तक जो उनकी प्रॉब्लम है वो हल हो जाए। क्योंकि आपको पता है अभी बीरवा में एक एमएलए रहा कर, और आजकल जो यूटी की ओर से 4 कॉन्स्टिट्यूंसियां बन गई, इसका यही मतलब है कि जो एक यूटी कॉन्स्टिट्यूंसी की ओर से डीडीसी चेयरमैन बन के चुन के आएगा, दैट मीन्स कि वो क्विक अपने ब्लॉक में, अपने एरिया में अच्छे तरह से काम कर सकता है। जैसे एमएलए का ताल्लुक होता था कि 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका घूमना, अब एक ही बंदा अपने ब्लॉक में काम कर सकता है और उसकी नजर हर एक तरह दौड़ेगी, हर एक इलाके की ओर जाएगी, ताकि जहां लगेगा कि हमारे इलाके में कोई प्रॉब्लम है वो उस इलाके की ओर जल्द जाके क्विक उस एरिया की वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकता है। जी हिलाल साहब, आपके पास मैं दोबारा आऊँगा। अशरफ साहब, चूँकि आप सियासी तजिया निगार है, आपके आर्टिकल्स आते ही रहते हैं, क्या लगता है आपका ये जो डीडीसी इंतखाब है ये क्या हैसियत रखता है, इसकी क्या अहमियत है हमारे इस कश्मीरी पॉलिटिकल आउटलुक में, जो कश्मीरी सियासी पस मंज़र है इसमें कितनी अहमियत है इस इंतखाब की? जी शुक्रिया आरिफ साहब। सबसे पहले मैं नज़ीर अहमद और मोहतरम नज़ीर साहब और परवेज साहब की खिदमत में सलाम अर्ज करना चाहूँगा कि ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि मज़कूरा कदावर शख्सियत हमारे प्रोग्राम में आई है। तो आपने मोहतरम सवाल कायम किया है कि डीडीसी इंतखाबात की क्या अहमियत है, और इसके साथ आपने ये भी बताया है कि पॉलिटिकल आउटलुक के हवाले से अगर देखा जाए तो इसके क्या अहमियत है और इसकी क्या आफादियत है। तो सबसे पहले मैं डीडीसी इंतखाबात की बात के हवाले से कहना चाहूंगा कि ये 3 टायर गवर्नेंस सिस्टम है, उसका एक हिस्सा है जिसके बारे में हम कहेंगे एक स्टेप टुवर्ड्स ग्रास रूट डेवलपमेंट। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मोहतरम नजीर साहब ने भी कहा कि इसका मतलब ये है कि रोटी कब्जा और मकान, या उन्होंने ये भी कहा है कि डीडीसी इंतखाबात का मतलब ये है कि लोग अपने नुमाइंदे को अपने वोट देकर चुनेंगे और जो उनकी बात गवर्नमेंट या सरकार तक डायरेक्टली बराह रास्त पहुंचाएंगे या उनको रोटी कब्जा और मकान बहम पहुंचाएगा। या अगर हम ये कहेंगे दूसरे अल्फाज में कि बुनियादी सहूलियात और जरूरियात जिंदगी आम आवाम तक बहम पहुंचाई जाएगी। तो फिर मैं उनसे यहाँ यह कहना चाहूंगा कि मोहतरम परवेज साहब भी कांग्रेस के साथ रहे हैं और नजीर साहब भी कई इंतखाब में हिस्सा ले चुके हैं। इनका एक तवील और पॉलिटिकल कैरियर दोनों साहिबान का है। तो अब तक ये इंतखाबात जो है, डीडीसी इलेक्शंस जो है, रियासत जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं अमलाई गई है, ऐसे इंतखाबात क्यों नहीं किए गए हैं यहाँ पर। तो इस सवाल से ये कहना चाहूंगा मैं कि आपके सवाल का ताल्लुक जो है ये बरास्त या बिला वास्ता कहीं न कहीं इसके साथ जुड़ ही जाता है कि जो रियासत जम्मू कश्मीर में अपर क्लास पॉलिटिशियंस है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है, वो नहीं चाहते थे कि पावर शेयरिंग जो उनकी है इकोनॉमिक रिसोर्सेस और पावर शेयरिंग, दे डिड नॉट वांट टू शेयर देयर पावर एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल एज फॉर दीज इलेक्शंस।
हाँ अशरफ साहब, मैं आपके पास अशरफ साहब मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। जी अशरफ साहब मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। नजीर साहब, यही वजह है कि जी अशरफ साहब, जब डीडीसी इंतखाबात की घोषणा जब यहाँ की गई है, इनका ऐलान जब किया गया है, चलिए ठीक है जो मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अशरफ साहब मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। नजीर साहब आप शायद आज़ाद इस बार आप शायद आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में आ रहे हैं, क्यों ये तब्दीली क्यों? इस बार आप आज़ाद उम्मीदवार क्यों? लोग आपसे पूछते हैं कि आपने कोई पार्टी क्यों नहीं चुनी? ये मेरे मुकद्दर में ही लिखा है। बात असल में ये है कि मैं एक पॉलिटिकल लेबर हूं, लेबर। मजदूर को देखना पड़ता है कि कहां कैसी जमीन है, कहीं चपटी है, कहीं जरखेज है, कहीं लबरू है, कहीं मैदानी है, कहां क्या नजर आता है, ये लेबर को आता है, लीडर को नहीं आता। जब मुझे बंजर नजर आ रहा है, वहां जरखेज करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आजाद उम्मीदवार की हैसियत में आज इसलिए लड़ रहा हूं कि आपको मालूम होगा कि असेंबली सेगमेंट बीरवा में 3 ब्लॉक्स में मेरे तीन चेयरमैन हैं। पिछले दफा जब पंचायत के इलेक्शन हुए, आई गॉट 95% पंचेस एंड सरपंचेस इलेक्टेड फ्रॉम असेंबली सेगमेंट। पीपल्स अलायंस जो बनी, पार्टी के नाम पर लोग हमसे कुछ नफरत किया करते, चाहे पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस। शायद हमको पार्टी के नाम से लोग करना नहीं आया। इस गंभीर सिचुएशन में, इन मुश्किल हालात में शायद हम इस कसौटी पर ना उतर सके। ये निकला जो हमारे बड़े सियासतदान, उन्होंने अपने पार्टीज के नाम काट के पीपल्स अलायंस के नाम से लोगों के सामने आने की मजबूरी समझी। उसमें हामी लोग थे जो ग्राउंड में बहुत मजबूत है। जब मैंने असेंबली इलेक्शन लड़ा, आई वॉज फाइटिंग ऑन कांग्रेस टिकट। आई गॉट 23,000 वोट्स अगेंस्ट दैट टाइम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। और उस वक्त आपके सारे चैनल्स गवाह हैं, नेशनल चैनल्स, कि नजीर अहमद खान वन द सीट फ्रॉम असेंबली सेगमेंट बीरवा। न जाने 10 मिनट के बाद उमर साहब के हक में ऐलान होता है कि वो जीतते हैं। दिस इज अ ट्रेजेडी, क्योंकि अच्छे लोगों को पनपने का मौका नहीं मिला। ये कुछ लोग हैं पॉलिटिक्स में अभी भी जो किसी भी सूरत में यहाँ के फर्टाइल ब्रेन को रहनुमाई करने का मौका नहीं देते। दिस इज अ ट्रेजेडी। वरना सीट शेयरिंग का जहां तक ताल्लुक है, पीपल्स अलायंस में बीरवा की चार सीटें मेरा हक था। क्यों? बीरवा में मेरा बीडीसी है चेयरपर्सन मैडम, खाद में मिस्टर भूपेंद्र सिंह था, मैंने जिताया, मेरा हक था। नारबल में मेरा बीडीसी था मिस्टर जहूर अहमद शेख। अगर अखलाकी बुनियाद पे, मेरिट की बुनियाद पर, एलिजिबिलिटी की बुनियाद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का जो अलायंस है, उनका हक बनता था मेरिट बुनियाद पर कि मुझे ये 4 की 4 सीटें मिली। और इसके बदले में क्या होता है कि मुझे 1 सीट दी जाती है रक्सन वाली, और सीट पर नाजायज कब्जा किया नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैं उमर साहब से एक सवाल करना चाहता हूं। उमर साहब, मेरिट किस चीज को कहते हैं आप? मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूं। मैंने इलेक्शन लड़ा, 23,000 से मैंने उमर साहब को हराया। पार्लियामेंट इलेक्शन में डॉक्टर फारूक के मुकाबले में मैंने नेक टू नेक फाइट से उसका मुकाबला किया। क्या यही है पीपल्स अलायंस?
क्या यही रहनुमाई करेंगे इस मुसीबत की घड़ी में? जिस कैंडिडेट को आपने खड़ा किया उसने उमर साहब ने आज तक कभी बनने का मौका फराहम नहीं किया। जी सर Presently, I am Deputy President. सर I fought Parliament election. जी I fought Assembly election. I gave neck to neck fight to national leaders. और नजीर अहमद खान का नाम पहले अथॉरिटी लेटर में घर भेजा गया। मेरे पास अथॉरिटी लेटर मौजूद है। मैं जो गुज़िश्ता जी सर मैं गुज़िश्ता इलेक्शन जो हुए हैं सर नज़ीर साहब जो गुज़िश्ता जी महबूबा जी नज़ीर साहब आप मेरी बात सुनिए नज़ीर साहब जो मैं हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं जी रात 9 बजे 15 तारीख शाम को इतवार को ये अथॉरिटी लेटर पीपल्स अलायंस की मेरे घर में पहुंचती है और रात के 12 बजे जब उमर साहब को पता चला मेरा नाम काट के एक ऐसे शख्स को मंडेट दिया गया जिसका अभी नाम निशान नहीं। बिल्कुल कैसे सर मेरा गुज़िश्ता इलेक्शन जी सर नज़ीर साहब मेहनत करके खून पसीना जी मेरा इख्तिसार आपसे एक सवाल है क्योंकि आपने खुद ही फरमाया कि आपके जो बीडीसीज हैं नारबल का बीडीसी भी आपसे ही वाबस्ता है उनके रहनुमा आप ही है खा के भी आपने फरमाया खा का बीडीसी भी जी सर मेरा सवाल सुनिए जी सर मेरा सवाल सुनिए नज़ीर साहब मेरा सवाल बिल्कुल सिंपल है सिस्टम को ये सोशल रिफॉर्म हम सोशल में की खिदमत करके नज़ीर साहब मैं आपके पास दोबारा आऊँगा हिलाल साहब जैसा कि आप जानते हैं कि नारबल में कितनी इंक्रोचमेंट है बाकी चीज़ें बाकी मसाइल है तो अभी तक आपने क्या किया नारबल के हवाले से जिस इलाके से आप इस वक्त लड़ रहे हैं कंटेस्ट कर रहे हैं तो आपको खुद पता है वहाँ गंदगी तो आप जानते हैं ये गंदगी कितनी है तो क्या किया आपने इस हवाले से आपका जो पिछला बैकग्राउंड है अगर आप थोड़ा सा आवाम को बताएंगे क्या क्या आपने काम किए हुए हैं हमारा आवाम भी जान पाएगा। जहाँ तक नारबल की डेवलपमेंट का काम है मेरे वालिद साहब 65 से उन्हें जब इलेक्शन पहली लड़ी थी 65 में वो चुने गए थे बीरवा से अप टू 8 कंटिन्यूली 3 बार वो चुने गए बीरवा से शेख साहब बख्शी साहब के वक्त में कासिम साहब के वक्त में और सादिक साहब के वक्त में उन्होंने बीरू के लोगों के बहुत खिदमत की है प्रॉपरली वो नारबल के हैं। जहां तक मेरी सियासत में का ताल्लुक है मैंने अपने एरिया में अपने ब्लॉक में मैं कहूँगा नारबल में जब हम मागाम से नारबल की ओर आते हैं तो कावूसा अभी भी मुझे याद है जब कावूसा के हमारी माँ बहनें पानी के एक कतरे के लिए तरस रहे होते हैं क्योंकि वहां पे जो मेरे वालिद साहब ने टंगमर्ग से पानी लाया था नारबल के लिए उसमें ओवरऑल जो कांजहमा है माजहमा जो बाकी गाँव है उनको भी पानी मिलता था बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम हो गई और उनको पानी का बहुत ही मसला जो है आज तक भी उसमें फिर खान साहब के वालिद साहब उन्हें अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्होंने नारबल को पानी का जो वो मसला था वो हल किया। लेकिन मैंने बजाय खुद नारबल में हमारा एक महला आता है अरफिन कॉलोनी एक नई कॉलोनी बनी है उस कॉलोनी में मैंने ट्रांसफार्मर दिलवाए हैं पोल दिलवाए हैं पानी का मसला हल कराया है। सुंदराबाद एक हमारा और एक गाँव है वहां पे मैंने पानी का मसला हल कराया है। कली माला को मैंने पानी दिलवा दिया है गाठ को मैंने पानी दिलवा दिया है नारबल में जहाँ पर हमारी जामिया मस्जिद है वहां से जो लोग रहते हैं उनको मैंने पानी दिलवा दिया है। इवन मैंने कोई एम था कोई एमएलसी था फिर भी मैंने बहुत कोशिश की कि नारबल में जो प्रॉब्लम है उनको हल करो और बहुत हद तक मैं उसमें कामयाब हो गया। और अगर अल्लाह ने चाहा इस वक्त में उन्हीं लोगों की तरह से उन्होंने मुझे खड़ा किया है उन्होंने कहा कि आप इसमें आ जाइए
आप कॉन्टेक्ट करिए, आप परीक्षण करिए, जिताना उनका काम है। मैं अपने गांवों वालों को और अपने ब्लॉक को कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है मैं आपके लिए कोई काम कर सकता हूँ या मैंने कोई काम किया हो तो आप साथ दीजिए, इस बात है। और मैं कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ने अगर चाहा मैं आपके पास में जो हमारी प्रॉब्लम है उनको मैं हल करने की पूरी कोशिश करूँ। जी मैं आपके पास नज़ीर साहब जैसा कि आपने खुद फरमा रहे थे कि नारबल का जो बीडीसी है वो भी आपसे मुंसलिक, उनके लीडर आप ही हैं। खाग का बीडीसी वो भी आप से ही वाबस्ता है। खाग से मुझे कॉल्स आती है, बहुत सारी कॉल्स आती है। खाग वाले कह रहे हैं कि हमें 2-2 साल के बाद बिजली बिल्स हमें पहुंचती है। तो जब बिजली बिल्स 2 साल के बाद पहुंचती है तो इतना अमाउंट होता है हम वो भर नहीं सकते हैं। यहाँ पर बिजली की बिल्कुल अदम दस्तयाबी होती है खाग में। मैंने वहाँ के असिस्टेंट इंजीनियर से बात की तो वो कह रहे हैं कि इनको कहे पहले बिजली फीस तो भर दीजिए फिर हम आपको बिजली देंगे। तो ये क्यों, ये मसले बीरवा की, अगर आप जहाँ रहते हैं बीरवा में भी यही बिल्कुल, बीरवा के आपके वो आउटस्कर्ट्स जो आपके मज़ाफ़ाती इलाके हैं, वोहनगाम है, चीडारा है, वो या वो सनपा वगैरह। सनपा में एक मसला है, वो पानी का वो रिजर्वायर है आपके यहाँ, वहाँ पर गंदगी है, आपको पता होगा वहाँ पर गंदगी है। तो इस हवाले से आप क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या इनिशिएटिव्स है इस हवाले से? देखिए, आज तक हमारे मतलब ये काफी टाइम से हमें बड़े लोगों के साथ साबिका, जैसे कि उमर साहब हमारे एमएलए बन गए, जिस दिन वोट लिया तो फिर अल्लाह हाफिज, आज तक उसने उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। हम बात नहीं थे लेकिन हो गए, बीरवा वाले बदनाम हो गए कि ये सीएम कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वो मैं आपको कल इंशाल्लाह जब रिजल्ट आएंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम बद नहीं थे, बदनाम थे। हम गरीब हैं, हम पसमानदा हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उम्र की वजह से बेटा गर्क हो गया बीरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी। और मैं चाहता हूं जो आप बिल के हवाले से बात करते हैं ये वाकई सही है, यहाँ कोई टेक्नोलॉजी है नहीं, डिजिटल जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठप है। यहाँ जो बिजली बिल निकलती हैं, जो गरीब आदमी बीपीएल की मतलब जिंदगी असर कर रहा है, उसको 50,000, 30,000, 67,000 की बिल आती है। जब उसको वेरीफाई करते हैं कि ये टेक्निकल फॉल्ट है, क्योंकि वी आर बैकवर्ड। यहाँ कोई अभी सिस्टम ऐसा है नहीं जहां हम इसको चेक करते हर वक्त उनका कंप्यूटर बैठा रहता है। मैं चाहता हूं कि अल्लाह करे कि हमारी भी हो, अच्छे नुमाइंदे चुन के आ जाएं ताकि सिस्टम ठीक करें, ताकि गरीबों को हक मिले और इंसाफ। बिल्कुल सही। ये भाई है उमर साहब कभी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी, लेकिन हम बदनाम हुए। ये सीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो बड़े बिना इनके कंधों से कभी नहीं उतरेंगे। अल्लाह ताला के सामने इनको जवाब होना होगा। इन्होंने हमारी पसमानदगी, हमारी सादगी, हमारी गुर्बत का नाजायज फायदा उठाकर कि मैं उन साहब हूँ, शेख साहब मैं आपकी खिदमत करूं, फिर हमने देखा वही शक्ल सूरत हमारी होगी, अंधेर नगरी चोट रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं, किसी ने हमारा नहीं सुना। सिर्फ बदनाम हुए कि सीएम सिक्योरिटी, ये सीएम उमर साहब है यहाँ पे और यहाँ कोई नहीं है तरह की दौर। हालांकि आपको मालूम होगा जिस वक्त, जैसे फिलहाल परवेज साहब ने कहा, जिस वक्त मेरे साहब 5 साल एमएलए रहे, उतल गांव में आज मेरे डैडी दिया, खाग में तहसील मेरे डैडी ने दिया, मुफ्ती साहब के पहले रजी में 2 पेज आ गए, एक में सांबा के लिए, कश्मीर में बीर में मेरे डैडी सरफराज खान साहब ने कॉलेज था। ये परवेज साहब का जो ब्लॉक है वहां जो हायर सेकेंडरी की वो मेरे डैडी ने दी। मेरा डैडी एक दिन इनके पानी की किल्लत को दूर करके एमएलए हो लोगों में बैठकर हड़ताल में बैठ गए। हिलाल परवेज साहब गवाह है और उनको वो पीएचई का वो मला जो तो पीने के पानी का वो मेरे डैडी ने हल किया। यहाँ पीएमजीएसवाई के हवाले से कुतलगाम से लेकर बपट तक मेरे डैडी ने रास्ता बनवाया। ये यहाँ कोचगुंड से लेकर ऊपर बोनामा से लेकर कालमाला तक मेरे डैडी ने पीएमजीएसवाई बनाया। कानामा से लेकर बुद्रन तक हुआ, हाजी भटपुरा मेरे डैडी
मेरे डैडी ने दिलाया, मार्बल में हायरी मेरे डैडी ने दिलाई। जब मौका मिला हमारे घर में खिदमत की, मैं उसी बाप का बेटा हूँ, इसी नीयत से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। आज ये सोशल रिफॉर्म चाहता हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स इतनी भारी हो गई है, इतने मतलब ट्रस्ट खत्म हो चुका है इस वक्त, इतना ट्रस्ट ब्रीच है कि आज शायद एतबार से लीडरशिप पर एतबार करना कश्मीरी आवाम गुनाह समझती है। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला एक मौका दे इस पंचायत इलेक्शन के हवाले से फॉर्म गरीबों तक पहुंचाने के लिए एक मौका हमको मिले। बिल्कुल बिल्कुल नजीर साहब, बिल्कुल बिल्कुल हम एतराफ़ करते हैं आपके वालिद साहब सैफुद्दीन खान साहब। हाँ बिल्कुल, उनके काम तो आया है, क्योंकि जो करता है उसके जो करतूत होते हैं, उसके जो काम होते हैं वो आया होते हैं। हायर सेकेंडरी नारबल में आपके वालिद साहब ने दी, ये तो वाटर प्लांट नारबल में आप ही के वालिद साहब का है, और बहुत सारे काम उन्होंने किया। हम इसका तो बिल्कुल एतराफ़ करते हैं आपके वालिद साहब का, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनका वो तो रोज़े रोशन की तरह उनके काम आया है। हाँ अशरफ साहब एक शेर है, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हमें 70 साल हुए हैं हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, लेकिन अभी भी हम इन बुनियादी मसाइल जो हमारी बुनियादी ज़रूरियतें हैं अभी हम वो पूरा नहीं कर सकते हैं, अभी हम वो पूरी नहीं हुई है। अभी हमारे यहाँ बिजली नहीं है, अभी हमारे यहाँ शेल्टर नहीं है, हमारे रोड्स ख़राब हैं। कल मैंने खान साहब का एक रोड देखा, वहाँ तो अल्लाह ही हाफिज़ है, वो बड़ी तशवीशनाक बात है। ये क्या मसला है, क्यों अभी हम उन्हीं बुनियादी मसाइल में उलझ गए हैं? अशरफ साहब आपका कमेंट। देखिए इरफान साहब, ये बात आज की नहीं है, बल्कि आपने खुद बताया है कि 70 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, लेकिन हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए हैं, लेकिन सियासी और समाजी तौर पर हम अभी भी गुलाम है। अभी मोहतरम नजीर अहमद खान साहब कह रहे थे कि पिछली बार उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से इंतखाबात में हिस्सा लिया था, है ना नजीर साहब? जी। तो उन्होंने मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब को टफ टाइम दिया था। मैं भी इलेक्शन जो थे, इंतखाबात के नताइज जो थे, मैं भी सुबह से लेकर शाम तक सुन रहा था। वो वाकई उन्होंने टफ टाइम उन्हें दिया था और उमर साहब के पसीने छूट रहे थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इलाके खास के लोगों ने या बीरवा के लोगों ने कोई मैंडेट दिया है और उन्होंने अपना नुमाइंदा चाहे किस्मत से या नजीर साहब की बदकिस्मती से उनको चुना है। लेकिन नजीर अहमद साहब का इतना जो बिग पॉलिटिकल कैरियर है, उनका जो इतना लंबा तवील उर्से से ये सियासत में है, और इनके वालिद साहब भी रहे हैं और माशाअल्लाह जीते भी हैं, मैंडेट भी दिया गया उन्हें। लेकिन फिर बहस अपोजिशन में रहकर उन्होंने उमर साहब को क्यों नहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खींच कर लाया, और वहां के जो तामीर तरक्की के जो काम थे जो मान पड़े हुए थे, या वहां जो बेरोजगारी, यहाँ पर जो वहां के जो मनसूबे जो ठप होकर रह गए थे, उनकी निशानदेही क्यों नहीं कराई, ताकि इलाके बीरवा के लोग जो थे, जिसके साथ ज्यादातर पसमानदा इलाका वापस और बीरवा जो है, उनको पता चलता कि जिस शख्स को मंडेट दिया है तक उनकी तवक्को पूरी करते हैं। अशर साहब we are running out of the time। उनसे उस वक्त में उमर अब्दुल्ला साहब को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन वापस दोबारा नहीं लाई। हकीकत है कि वो सीएम कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से बदनाम। अशर साहब वक्त की किल्लत हमें दामन गिर होती है, इतना लंबा कमेंट्स क्योंकि गुंजाइश नहीं होती है। हिलाल साहब आखिर में आपसे आपका पैगाम लेना चाहते हैं, जो आवाम नारवल की आवाम आपको देख रही है, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? हिलाल साहब। मैं अपने बुलाक के लोगों से, एवं के नारवल के लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर वो मुझे साथ दे, इंशाल्लाह जो हमारे एरिया में जो खामियां है या जो अभी प्रॉब्लम्स है, बीच में मैं एक बात कहना चाहूँगा, नजीर साहब भी हमारे सामने है। हमारे एरिया में बदकिस्मती मैं कहूँगा, बिकॉज नारवल को गेट ऑफ गुलमर्ग कहा जाता है। अगर नारवल गेट वे ऑफ गुलमर्ग है, तो मैं गवर्नमेंट से सवाल करना चाहता हूँ कि अगर
गेट वे ऑफ गुलमर्ग उसी चीज को बनाया जाता है, उस एरिया को बनाया जाता है जो फॉरवर्ड हो। अगर हमारा एरिया फॉरवर्ड है तो हमें वो फैसिलिटी दीजिए आप, या अगर फॉरवर्ड नहीं है तो हमें बैकवर्ड सर्टिफिकेट दीजिए, ताकि हमारे जो गरीब बेचारे किसी जुमरे में आएंगे। आप ये बात सुनिए, डिग्री कॉलेज की अभी नजीर साहब ने बात की, बीरवा में एक डिग्री कॉलेज है, मागा में एक डिग्री कॉलेज है, बट अनफॉर्चुनेटली नारबल को पता नहीं क्यों इग्नोर किया जाता है। हमारे पास लैंड अवेलेबल है नारबल में, लगभग 300 कनाल जमीन हमारे पास अच्छी पड़ी है। हम गवर्नमेंट से बार बार हमने गवर्नमेंट से कहा कि भाई अगर डिग्री कॉलेज ऑलरेडी है तो पॉलिटेक्निकल कॉलेज हमें नारबल में दीजिए, ताकि आवाम जो एरिया जो बाकी एरियाज है वो उस कॉलेज में पढ़ सकते हैं। हमारी जमीन ऐसी पड़ी है, मगर पता नहीं गवर्नमेंट किस चीज का हमें बदला ले रही है। अब मैं अपने लोगों से कहना चाहूंगा कि वो मेरा अगर साथ दें तो जो हमारी खामियां हैं नारबल एरिया में, अल्लाह ने चाहा तो मैं इनको हल करूंगा इंशाल्लाह। और नारबल की जो हॉस्टल की आप बात होगा, रजीज साहब को शायद पता होगा कि मंगत राम शर्मा उन्हें अल्लाह स्वर्ग में जगह दे, नारबल में उनको हॉस्टल में मैंने लाया था, एक एक्सरे मशीन मैंने वहां मंगवाई थी, नारबल में दिलवाई थी। इवन की जो हमारे एरिया का एक मकदम है पटपोरा का, उससे मैंने शाहतूत के दरख्त निगुट से लाए, मैंने खुद वो नारबल के हॉस्टल में लगवाए हैं। अभी भी लोग वही याद करते हैं। जो मैंने काम किया है नारबल के लोगों को पता है, बाकी आपको तो पता है। अगर अल्लाह ने चाहा, उन्होंने मेरा साथ दिया, जो अभी अशरफ साहब ने भी कहा, मैं कोशिश करूंगा कि उनके जो बाकी खामियां हैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको मैं हल करूं। जी नज़ीर साहब आखिर पे आपका पैगाम लेना चाहते हैं आप अपनी आवाम के लिए, जो भीरवा की आवाम आपको देखती है, आप तो हर दिल अजीज हैं, आपको तो बहुत पब्लिक सपोर्ट है, तो अपनी आवाम के लिए आपका क्या पैगाम है? जी आप मेरी हाँ इरफान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आज पहली बार रूबरू हाजिर हुआ हूँ, तो ये तवारीखी दिन है और इस वक्त के इल्हामात मैं जिंदगी में आज पहली बार इस तरह से पेश हुआ हूँ कौम के सामने आपकी वजह से, तो इसके लिए आपका शुक्रिया। चाहता ये हूँ कि जिला बडगाम की 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, बीरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी तालीमी एतबार से बहुत पसमानदा है, और पंचायत डीडीसी इलेक्शन के हवाले से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स हुआ है, तो बीरवा में 4 सीट्स हैं, 4 सीट खान साहब में है 3, चिरारे शरीफ में है 3, चाडोरा में है 2, में है 2। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से अगर देखेंगे, हक बनता है कि अगर ये 4 सीटें बीरवा में उन 4 कैंडिडेट्स को मिले जो हमको एतमाद दें, ताकि हम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बोर्ड के बन सकें और हम अपने पसमानदा इलाका की खदमत कर सके। हक भी है क्योंकि 4 सीटें सबसे ज्यादा क्वांटिटी जो है वो मेरे पास मौजूद है। बीरवा में 4 सीटें हैं, किसी भी असेंबली सेगमेंट में 4 सीटें नहीं है, और मुझे उम्मीद है मैं इस वक्त कोई 7 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहा हूं अपने एतबार से, और अपने वालिद साहब मरहूम जिस इलाके में काफी खदमत की है उस वक्त जब हालात इंतहाई नागुफ्ता थे, उसका मैं इस वक्त लोगों के साथ शेयर करके वो उस वक्त के जो हालात थे, लोग समझते हैं कि नजीर अहमद खान उस बाप का बेटा जिसने मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया, और उन 7 कैंडिडेट्स को मैं चाहता हूं अल्लाह ताला करे कि लोगों के दिलों में एक तासीर पैदा हो कि वो मुझे डिस्ट्रिक्ट में चेयरमैन बनाने के लिए उनको कामयाब करें। उसमें मेरा है खाद में मौलाना निसार साहब जो जामिया मस्जिद के बहुत बड़े खतीब हैं, और इसी तरह से अच्छे लोगों को मैंने खड़ा किया है। तो मुझे उम्मीद है कि उन 7 में से 5 तक मेरी पूरी पहुंच है, और मैं आपसे वादा करता हूं कि रिजल्ट के दिन 5 की तो मैं निशानदेही कर ही सकता हूं कि वो जीत जाएंगे इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि मैं यहां से बिल्कुल ये आजकल के जो ये हालात हैं उन और जो बड़े बड़े आदात हमारे हो गए हैं कि करना है, यहाँ जम्मू कश्मीर की को एक आदत पड़ी है, बस अमेरिकन पॉलिटिक्स, चाइना पॉलिटिक्स, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पगवाश, लेकिन घर की हमारी क्या खबर है इसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं। मैं इस पॉलिटिक्स को चेंज करना चाहता हूं, रिफॉर्म करना चाहता हूं कि आज
اللہ کے مدد سے ہمارے اس پروسیس کے ذریعے ایک بات رہے لیول پہ لوگوں کی خدمت کرنے میں مجھے امید ہے کہ لوگوں کی جی 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 نذیر صاحب جی نذیر صاحب کیونکہ وقت کی قلت جی جی نذیر صاحب کیونکہ وقت کی قلت ہمیں دامن گیر ہوتی ہے کہ ہم پروگرام کو آگے نہیں بڑھا سکتے نذیر صاحب جی 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 نذیر صاحب وقت کی قلت ہمیں دامن گیر ہوتی ہے کہ ہم پروگرام کو آگے نہیں بڑھا سکتے. بحث تو بہت اچھی چل رہی تھی, مسائل بہت سارے تھے جو ڈسکس کرنے تھے جو رہ گئے ڈسکس کرنے سے, لیکن انشاءاللہ کسی اور دن انہیں بھی ڈسکس کریں گے. بہترین گفتگو چل رہی تھی لیکن وقت کی قلت دامن گیر ہیں تو ہم جی جی پروگرام کو ہم جی 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 تو وقت کی قلت دامن گیر ہونے کے سبب ہم پروگرام کو آگے نہیں بڑھا سکتے. ہم محترم نذیر احمد خان صاحب کے شکر گزار ہیں. ہماری دعا یہی ہے کہ آپ دونوں کینڈیڈیٹس جو ہے اللہ آپ دونوں کو کامیاب کرے اور اپنے علاقے میں فلاح و بہبود کے کام کرے اور ترقی کی طرف اپنے علاقے کو لے جائے. ہم مشکور ہیں نذیر احمد خان صاحب کے, ہم مشکور ہیں سید پرویز ہلال صاحب کے, ہم مشکور ہیں محترم اشرف صاحب کے جو ضلع بارہمولہ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے. انشاءاللہ ناظرین کسی اور دن کچھ اور مہمانوں کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے. تب تک کے لیے